Hello everyone. So in this video we will discuss about the pullorum disease. So without any further ado, let's get started. So first of all, we will discuss about the Salmonella infection in the case of the poultry. So simply the infections of the poultry with the Salmonella can be grouped into the three categories. The first group includes the infection with the two non-motile serotype Salmonella pullorum and Salmonella gallinarum, which are generally host specific for the avian species. Both of these diseases have been responsible for serious economic losses to the poultry farmers in the past. The second group includes the infection with a group of motile Salmonella serotypes referred to collectively as the paratyphoid Salmonella. सो देखो भाई, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट द सेल्मोनेला इन्फेक्शन इन द केस ऑफ द पोल्ट्री. सो सिंपली द इन्फेक्शंस ऑफ द पोल्ट्री विद द सेल्मोनेला कैन बी ग्रुप्ड इनटू द थ्री कैटेगरीज. अब देखो, ये जो जीनस सेल्मोनेला है, इसके डिफरेंट मेंबर्स पोल्ट्री में डिफरेंट डिजीज कंडीशन डेवलप कराते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन डिवाइड दिस पर्टिकुलर जीनस सेल्मोनेला इनटू द थ्री कैटेगरीज. ठीक है. So the first category includes the infection with the two non-motile serotype, that is Salmonella pullorum and Salmonella gallinarum, which are generally host specific for the avian species. देखो, मैंने आपको क्या बताया कि जीनस Salmonella के अंदर जितने भी मेंबर्स आते हैं वो पोल्ट्री में डिफरेंट डिजीज कंडीशंस को डेवलप कराते हैं. ठीक है. और उन्हीं डिजीज कंडीशन के बेसिस पे हमने इस जीनस Salmonella के मेंबर्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया. सो फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं दो नॉन मोटाइल सीरोटाइप जिनका नाम है Salmonella pullorum एंड Salmonella gallinarum, और ये दोनों ही बैक्टीरिया कैसे हैं, होस्ट स्पेसिफिक फॉर द एवियन स्पीशीज. ठीक है. So after that, both of these diseases have been responsible for the serious economic losses to the poultry farmers in the past. Basically, अगर किसी भी पोल्ट्री फार्म में Salmonella pullorum या तो Salmonella gallinarum का इन्फेक्शन हो जाता है तो वहां पे जितनी भी एवियन स्पीशीज प्रेजेंट है, दे ऑल विल गेट इन्फेक्टेड, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्शन रेट बिल्कुल डाउन चला जाएगा, जिसकी वजह से पोल्ट्री फार्मर्स को एक काफी ज्यादा इकोनॉमिक लॉसेस झेलने पड़ेंगे. ठीक है. Moving on, second group includes the infection with a group of a motile Salmonella serotypes referred collectively as the paratyphoid Salmonella. बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जो जीनस Salmonella है उसके डिफरेंट मेंबर्स पोल्ट्री में डिफरेंट डिजीज कंडीशन को डेवलप करते हैं एंड उसके बेसिस पे हमने जीनस Salmonella के मेंबर्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड करा. फर्स्ट कैटेगरी में कैसे आते थे, नॉन मोटाइल सीरोटाइप जैसे कि Salmonella pullorum और Salmonella gallinarum, और जो सेकंड कैटेगरी या सेकंड ग्रुप है उसमें आते हैं सारे के सारे मोटाइल Salmonella सीरोटाइप जिनको कलेक्टिवली हम पैराटाइफॉइड Salmonella के नाम से भी जानते हैं. ठीक है. Moving on, the disease produced by them is called the salmonellosis or the paratyphoid infections. The paratyphoid infections are importantly mainly as the cause of the foodborne disease in the humans. The third group includes the infection with the various motile serotypes of the subgenus Arizona, the most important species being the Salmonella arizona, which was formerly designated as the Arizona binshawi. The disease caused by this group of the organism is known as angionosis, which is of particular economic significance in the turkeys. After that, the disease produced by them is called the salmonellosis or the paratyphoid infections. The paratyphoid infections are important mainly as the cause of the foodborne disease in the case of the human beings. अब देखो, basically ये जो सेकेंड ग्रुप था ऑफ जीनस Salmonella, इसके अंदर क्या आते थे, सारे के सारे मोटाइल सीरोटाइप्स ऑफ द Salmonella जिसको हम कलेक्टिवली पैराटाइफॉइड Salmonella के नाम से भी जानते थे. अब ये जो पैराटाइफॉइड Salmonella होता है, या तो आप कह सकते हो मोटाइल सीरोटाइप्स ऑफ द Salmonella, ये पोल्ट्री को इन्फेक्ट करते हो, वहां पे Salmonellosis या तो पैराटाइफॉइड इन्फेक्शंस को डेवलप करा देते हैं. साथ ही साथ ये जो पैराटाइफॉइड इन्फेक्शन है, इट कैन आल्सो कॉज डिजीज इन द ह्यूमन बीइंग्स थ्रू द फूड बॉर्न रूट. ठीक है. Moving on, the third group includes the infection with the various motile serotypes of the subgenus Arizona, the most important species being the Salmonella arizona, which was formerly designated as Arizona binshawi.
सो देखो भाई, अभी तक हमने देखा कि जो जीनस सैल्मोनेला है उसके फर्स्ट ग्रुप में आते थे नॉन मोटाइल सीरोटाइप्स ऑफ द सैल्मोनेला, सेकेंड ग्रुप में आते थे मोटाइल सीरोटाइप्स ऑफ द सैल्मोनेला, जिसको हम क्या कहते थे कलेक्टिवली, पैराटाइफॉइड सैल्मोनेला। अभी जो थर्ड ग्रुप है इसके अंदर आते हैं मोटाइल सीरोटाइप बिलोंगिंग टू द सब जीनस एरिजोना, और सबसे इंपॉर्टेंट स्पीशीज है अंडर दिस सब जीनस एरिजोना, इट इज सैल्मोनेला एरिजोने, जिसको हम पहले एरिजोना बिनशबाई के नाम से भी जानते थे। ठीक है, after that the disease caused by this group of the organism is known as angionosis, which is of particular economic significance in the case of the turkeys. So देखो भाई, simply ये जो सब जीनस एरिजोना है इसके अंदर जितने भी मोटाइल सीरोटाइप्स आते हैं दे विल इन्फेक्ट द डिफरेंट पोल्ट्री बर्ड्स, जिसकी वजह से वहां पे एक डिजीज कंडीशन डेवलप होगी जिसको हम क्या कहते हैं एंजियोनोसिस। और मेनली सब जीनस एरिजोना के अंदर जितने भी मोटाइल सीरोटाइप्स आते हैं, जितने भी इसके मेंबर्स हैं, दे विल मेनली इन्फेक्ट द टर्कीज। ठीक है, so now we will talk about the pullorum disease. So simply the pullorum disease, which is also known as PD, is caused by the bacterium Salmonella pullorum. The disease was previously known as bacillary white diarrhea or BWD. It is a septicemia disease affecting mainly the chickens and the turkeys, but the other birds are also susceptible. सो देखो भाई, अब हम लोग बात करते हैं अबाउट द पुलोरम डिजीज। सो सिंपली द पुलोरम डिजीज इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम सैल्मोनेला पुलोरम। अभी जो पुलोरम डिजीज है इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, सैल्मोनेला पुलोरम। द डिजीज वाज previously known as bacillary white diarrhea और BWD। बेसिकली इस पुलोरम डिजीज को हम पहले बैसिलरी वाइट डायरिया और BWD के नाम से भी जानते थे। ठीक है, it is the septicemic disease affecting mainly the chickens and the turkeys, but other birds are also infected। बेसिकली क्या है, ये जो पुलोरम डिजीज है जिसका पॉजिटिव एजेंट है सैल्मोनेला पुलोरम, ये मेनली चिकन्स और टर्कीज को इन्फेक्ट करता है, जिसकी वजह से वहां पे सिस्टमिक इन्फेक्शन या तो आप कह सकते हो सेप्टिसीमिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है। ठीक है, साथ ही साथ ये जो सैल्मोनेला पुलोरम है इट कैन आल्सो इन्फेक्ट द अदर बर्ड्स एक्सक्लूडिंग द चिकन्स एंड द टर्कीज। ठीक है, now moving on, we will discuss about the transmission of the pulorum disease. So simply the first route of the transmission can be the vertical transmission, that is the trans-ovarian transmission from infected hen through the ovary to the newly hatched chick. A proportion of the infected birds become adult carriers with the Salmonella pulorum persisting in the ovaries and being excreted in the ova. The fluff from such chicks is heavily contaminated with the Salmonella pulorum, and as it dries, the bacteria are rapidly disseminated through the incubator or the brooder. Thus, the pulorum disease is passed from hen to chick by the vertical transmission, and then there is rapid lateral spread from chick to chick in the hatcheries and rearing units. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे about the transmission of the pulorum disease. So simply the first route of the transmission can be the vertical transmission. Here the trans-ovarian transmission from the infected hen through the ovary to the newly hatched chick takes place. So देखो भाई, simply ये जो पुलोरम डिजीज है it can transmit through the vertical transmission. बेसिकली अगर कोई भी हैन इन्फेक्टेड होगी विद द पुलोरम डिजीज तो ये हैन अपने ओवरी से न्यूली हैच्ड चिक में भी ये पर्टिकुलर पुलोरम डिजीज को ट्रांसमिट कर देगी, विच इज नोन एज द ट्रांस-ओवेरियन ट्रांसमिशन। ठीक है, After that, a proportion of the infected bird will become the adult carriers with the Salmonella pulorum persisting in the ovaries and being excreted in the ova. So देखो भाई, मान लो कि आपके पास 100 पोल्ट्री बर्ड्स हैं जिसमें क्या हुआ, पुलोरम डिजीज का आउटब्रेक हुआ, आपने ट्रीटमेंट करवाया जिसकी वजह से 80 बर्ड्स सही हो गए और 20 बर्ड्स की डेथ हो गई। आउट ऑफ दीज 80, 70 बर्ड्स तो टोटली रिकवर हो गए। ठीक है, और जो 10 बर्ड्स थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, कैरियर बर्ड्स में। बेसिकली इन 10 कैरियर बर्ड्स में सैल्मोनेला पुलोरम, दैट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द पुलोरम डिजीज, विल नॉर्मली रिसाइड और यहाँ पे कोई भी डिजीज कंडीशन को वो बैक्टीरिया डेवलप नहीं करेगा। ठीक है, अब ये जो सैल्मोनेला पुलोरम है जो इन कैरियर बर्ड्स के ओवरीज में रिसाइड कर रहा है, इट विल गेट ट्रांसमिटेड टू द ओवा इन ईच egg cycle through the trans-ovarian transmission and act as the source of the infection. ठीक है, so moving on, the fluff from such chicks is
heavily contaminated with the Salmonella pulorum, and as it dries, the bacteria are rapidly disseminated through the incubator or the brooder. So देखो भाई, ये जो हमारे पास कैरियर बर्ड्स थी जिसमें सैल्मोनेला पुलोरम का बैक्टीरिया नॉर्मली इनके ओवरीज में रिसाइड कर रहा था, बेसिकली ये कैरियर बर्ड्स ट्रांस ओवेरियन ट्रांसमिशन की वजह से हर एक एग साइकिल में इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को अपने एग या तो ओवा में ट्रांसफर कर रहे थे। ठीक है, अब जब इस पर्टिकुलर एग को आपने हैचरी में रखा और इससे जब चिक हैच आउट हुई, सो उस पर्टिकुलर चिक के जो फ्लफ्स होंगे, सॉफ्ट फाइबर्स होंगे, फर्स होंगे, इट विल बी हेवीली कंटामिनेटेड विद दिस पर्टिकुलर सैल्मोनेला पुलोरम बैक्टीरिया। ठीक है, और इंक्यूबेटर और ब्रूडर में रहने की वजह से जब ये सॉफ्ट फर, फाइबर्स, फ्लफ वगैरह ड्राई होंगे, तब ये सैल्मोनेला पुलोरम का बैक्टीरिया रैपिडली डिसेमिनेट करेगा, रैपिडली स्प्रेड करेगा थ्रू आउट द इंक्यूबेटर और ब्रूडर, जिसकी वजह से वहां पे जितनी भी अदर चिक्स अवेलेबल थी, दे विल आल्सो गेट द इन्फेक्शन। ठीक है, moving on, thus the pulorum disease is passed from hen to chick by vertical transmission, and then there is rapid lateral spread from chick to chick in the hatcheries and rearing units. So देखो भाई, simply वर्टिकल ट्रांसमिशन की वजह से ये जो पुलोरम डिजीज है, इसका स्प्रेड कैसे होता है? फ्रॉम हैंड टू द चिक। ठीक है, और फिर लेटरल स्प्रेड की वजह से इस पुलोरम डिजीज का स्प्रेड कैसे होता है? फ्रॉम चिक टू द चिक इन द रियरिंग और द हैचरी यूनिट्स। ठीक है, यहां तक बात सभी को क्लियर होगी? So that's all for this video. We will meet very soon in the next one.